عوام کے لیے بڑا ریلیف، حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان۔ پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے فی لیٹر کمی، لائٹ ڈیزل 7 روپے 1 پیسے فی لیٹر سستا، مٹی کے تیل کی قیمت میں 7 روپے فی لیٹر کمی، نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں افغانستان پر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، شرکاء کا افغانستان میں ہنگامی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ افغانستان کو ضرورت کے وقت تنہا چھوڑنا کسی کے مفاد میں نہیں، امید ہے دنیا افغانستان سے قطع تعلق کی غلطی نہیں دہرائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان۔ پاکستان کا ہنگامی صورتحال میں افغان عوام کی ہر ممکن مدد کا عزم، وزیر اعظم کی پاکستان کے راستے افغان عوام کی بین الاقوامی امداد کے لیے تمام سہولیات کی ہدایت۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی سے افغانستان کے عبوری وزیر تعلیم عبدالباقی حقانی کی ملاقات۔ افغانستان مشکل دور سے گزر رہا ہے، انسانی بحران سے بچنے کے لیے عالمی برادری افغان عوام کی مدد کرے۔ پاکستان افغانستان کی تعمیر نو اور ترقی کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گا، صدر مملکت۔ افغانستان پر OIC وزرائے خارجہ کونسل کا غیر معمولی اجلاس، اسلام آباد میں مندوبین اور وفود کی آمد کل سے شروع ہوگی۔ اقتصادی امداد کی بندش اور منجمد اثاثوں سے افغانستان تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ سرکاری ملازمین کو تنخواہوں کے لیے فنڈز ختم، افغان عوام انسانی امداد کے لیے عالمی برادری کی طرف دیکھنے لگے۔ افغانستان میں انسانی بحران سے نمٹنے اور امن و استحکام کے لیے ہر ممکن کردار ادا کر رہے ہیں، شاہ محمود قریشی۔ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ اور راوی اربن جیسے بڑے منصوبوں پر سیاسی تنقید بلا جواز۔ ترقیاتی منصوبوں میں ماحول دوست میٹیریل استعمال ہوگا، اربوں روپے کی سرمایہ کاری ہوگی، معاشی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت جائزہ اجلاس، غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز اور تجاوزات کے خلاف کارروائی کی ہدایت۔ زیرو ٹائم ٹو سٹارٹ اپ کی پالیسی لے کے آئے ہیں۔ جو لو رسک ہے اس کے لیے کوئی NOC کی ضرورت نہیں۔ ویمن انٹرپرائزز کے لیے 25% ٹیکس میں چھوٹ دے دی گئی۔ پاکستان کو بڑی سٹرانگ انڈسٹریل بیس چاہیے۔ اگر ہم اس کو ایک مضبوط انڈسٹریل بیس نہیں دے پاتے تو اس سے ہم کبھی بھی اپنے معاشی جو مسائل ہیں ان سے باہر نہیں نکل پائیں گے۔ چھوٹے اور درمیانے کاروبار کے لیے پالیسی کی منظوری، نیا کاروبار شروع کرنے والوں کو NOC نہیں لینا پڑے گا، بلا ضمانت قرضے ملیں گے۔ خواتین کو ٹیکس میں 25% کی خصوصی رعایت، مختلف شہروں میں SMEs کے لیے 4200 ایکڑ اراضی مختص، 19500 پلاٹ آسان اقساط پر فراہم کیے جائیں گے۔ پاکستان کو مضبوط صنعتی بنیاد فراہم کر رہے ہیں، SMEs کا فروغ معاشی خوشحالی کا ضامن بنے گا۔ وفاقی وزراء خسرو بختیار اور چودھری فواد حسین کی نیوز کانفرنس۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی کا G7 اسلام آباد میں احساس ون ونڈو مرکز کا دورہ، معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے تفصیلی بریفنگ دی۔ احساس پروگرام سماجی تحفظ کا اہم منصوبہ، میڈیا اور عوامی نمائندے شہریوں کو افادیت سے آگاہ کریں، صدر مملکت۔ اومیکرون 77 ممالک میں پہنچ گیا، وائرس کی نئی قسم غیر معمولی رفتار سے پھیل رہی ہے، عالمی ادارہ صحت نے وارننگ جاری کر دی۔ برطانیہ میں نئے ویرینٹ کا پھیلاؤ روکنے کے لیے خصوصی بل منظور، سینما، تھیٹرز اور میوزیم میں ماسک پہننا لازمی قرار۔ آسیان ممالک کا دورہ کرنے والے امریکی وفد کے رکن میں کورونا کی تشخیص، وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن دورہ ختم کر کے وطن واپس روانہ ہو گئے۔ امریکہ، نیٹو اور یورپی یونین کے بڑھتے دباؤ کے خلاف چین نے کھل کر روس کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ صدر پیوٹن کا صدر شی جن پنگ سے ویڈیو کال رابطہ، دونوں ممالک کا مشرقی یورپ اور یوکرین میں دفاعی تنصیبات کے خلاف متفقہ اقدامات پر اتفاق۔ نہتے کشمیریوں پر بھارتی مظالم کا سلسلہ جاری، دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران پلوامہ میں ایک اور نوجوان شہید،
भारत ने तमाम हदें पार कर दी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का मावराए अदालत कत्ल पर शदीद एहतजाज। 16 दिसंबर 2014 सान्हाए APS पेशावर। तल्ख यादें आज भी जहनों में ताज़ा। जुल्म और बर्बरियत की तारीख भी लरज़ उठी। सान्हे में 125 बच्चों समेत 151 अफराद शहीद हुए। कल शोहदा की 7वीं बरसी। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद और पुरअज़्म। M3 और M5 मोटरवे पर मोबाइल ब्रॉडबैंड कवरेज फराहमी का मुआहदा 30 करोड़ रुपए लागत आएगी। देहात और छोटे शहरों को डिजिटल दुनिया से मुंसलिक कर रहे हैं। IT के फरोग से रेवेन्यू में इजाफा होगा। वज़ीर मवासलात मुराद सईद और वज़ीर IT अमीनुल हक का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बालाई इलाकों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में ठंडी हवाओं का राज। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में आ गए। लह -12 और कल्लात में दर्जा हरारत -9 रिकॉर्ड। स्मोक से तंग शहरियों के लिए अच्छी खबर। महकमा मौसमियात ने 24 और 25 दिसंबर को बारिश की पेशगोई कर दी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मैच कल कराची में खेला जाएगा। मैच शाम 6 बजे से PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। ग्रीन शर्ट्स पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुकी है। पहला मैच पाकिस्तान ने 63 रन से और दूसरा मैच 9 रन से जीता। और ICC की नई रैंकिंग जारी। T20 क्रिकेट में बाबर आजम एक दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद तीसरे नंबर पर आ गए। मोहम्मद रिजवान का चौथा नंबर। बॉलर्स में शादाब खान 9वें नंबर पर पहुंच गए। टेस्ट रैंकिंग में बाबर आजम की 9वीं और बॉलिंग में शाहीन शाह आफरीदी की तीसरी पोजीशन। हसन अली भी टॉप 10 में जगह बनाने में कामयाब। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया कमल। और खेल की खबरें लिए मैं हूंगा आपके साथ समी इकबाल। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद। आप रहिए PTV न्यूज़ के साथ। फलाही रियासत की जानिब सफर का तारीखी संग मील। 37 लाख घरानों के लिए 1400 अरब रुपए के कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम का मरहलावार आगाज। पहले मरहले में गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ पंजाब और सिंध के पसमानदा अजला से कर्जाजात के लिए दरखास्तों की वसूली का आगाज। मज़कूरा इलाकों के महदूद वसाइल वाले पाकिस्तानी अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर अभी 5771 पर SMS करें। एहसास प्रोग्राम और नादरा के डेटाबेस से अहलियत और शनाख्त की तस्दीक के बाद आपको कर्जाजात की फराहमी से मुतालिक जवाबी SMS के जरिए मुत्तला किया जाएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुल्क के कोने कोने में नए खेत, नए आंगन, नए रोजगार और नए कारोबार आबाद होंगे, क्योंकि हर पाकिस्तानी कामयाब तो पाकिस्तान कामयाब। रियासत मदीना की तर्ज पर फलाही निजाम, मुआशी तरक्की, खुशहाल अवाम। ब्रेक के बाद खबरनामे में खुशामदीद। बुलेटिन का आगाज हुकूमत की जानिब से अवामी रिलीफ के अहम इक़दाम से। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर कमी की गई है। लाइट डीजल 7 रुपए 1 पैसे फी लीटर सस्ता किया गया है। मट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान किया गया है। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़त्म करना दुनिया के लिए नुकसानदेह होगा। उम्मीद करते हैं आलमी बिरादरी ये गलती नहीं दोहराएगी। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में अफगानिस्तान से मुताल्लिक एपिक्स कमेटी के दूसरे इजलास की सदारत करते हुए कही। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आलमी बिरादरी मसाइल के शिकार अफगान अवाम की मदद करे। पाकिस्तान इंसानी बहरान से निमटने के लिए हर मुमकिन मदद करेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने पहले ही इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अफगानिस्तान के लिए 5 अरब रुपए की फौरी इमदाद का ऐलान किया है।
جس میں 50,000 ٹن گندم، ہنگامی طبی سامان، سردی سے بچنے کے لیے پناہ گاہیں اور دیگر سامان شامل ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ زمینی راستے سے پاکستان میں آنے والے تمام افغان شہریوں کو کورونا ویکسین مفت لگائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ افغانوں کے لیے پاکستانی ویزا کے حصول کا طریقہ کار بھی آسان کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ پاکستان سے افغانستان میں امدادی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی خواہاں امدادی تنظیموں کو سہولیات فراہم کی جائیں۔ ایپیکس کمیٹی کے شرکاء نے ایک بار پھر افغانستان میں بگڑتی انسانی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ضرورت کی اس گھڑی میں افغان عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ افغانستان اس وقت مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ انسانی بحران سے بچانے کے لیے عالمی برادری افغان عوام کو امداد فراہم کرے۔ افغانستان کے اعلیٰ تعلیم کے عبوری وزیر عبدالباقی حقانی کی سربراہی میں وفد سے گفتگو کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ افغانستان کی تعمیر نو اور ترقی کے لیے ماہرین تعلیم اور تکنیکی ماہرین کی اشد ضرورت ہے۔ پاکستان اس سلسلے میں ہر ممکن تعاون جاری رکھے گا۔ صدر مملکت نے کہا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور ورچوئل یونیورسٹی افغان طلباء کو آن لائن تعلیم دینے میں معاونت فراہم کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ نیو ٹیک مختلف تکنیکی شعبوں میں تربیت کے لیے ووکیشنل ٹریننگ پروگرام منعقد کرے گا۔ اور وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ اور راوی اربن ڈیولپمنٹ منصوبے سرمایہ کاری اور معاشی سرگرمیوں کے حوالے سے اہمیت کے حامل ہیں۔ منصوبوں میں رکاوٹیں ڈالنا اور ان کو سیاسی تنقید کا نشانہ بنانا بلا جواز ہے۔ اسلام آباد میں جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز اور تجاوزات کے خلاف کارروائی کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ منصوبوں میں ماحول دوست میٹیریل کے ساتھ گرین اربنائزیشن ماڈل ملک کے دوسرے شہروں میں بھی استعمال کیا جائے۔ عمران خان نے کہا کہ حکومت غیر فعال اثاثوں کو سرمایہ کاری کے قابل بنا رہی ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کے پہلے مرحلے میں 100 ارب روپے کی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ اور وفاقی کابینہ نے چھوٹے اور درمیانے کاروبار کے لیے ایس ایم ای پالیسی کی منظوری دے دی ہے۔ نیا کاروبار شروع کرنے والوں کو این او سی سے آزادی مل گئی۔ کاروبار کرنے والی خواتین کو ٹیکس میں 25% خصوصی رعایت ملے گی۔ اسلام آباد میں نیوز بریفنگ میں وفاقی وزراء خسرو بختیار اور چودھری فواد حسین نے کہا کہ پاکستان کو مضبوط صنعتی بنیاد کی ضرورت ہے۔ ایس ایم ایز کا فروغ قوم اور ملک کی معاشی خوشحالی کا ضامن بنے گا۔ تفصیل جانیے عمران منصب کے اس رپورٹ میں۔ نیا کاروبار شروع کرنے والوں کے لیے اچھی خبر، این او سی کے جھنجٹ سے آزادی، خواتین کو ٹیکس میں 25% خصوصی رعایت اور ایس ایم ای کاروبار کرنے والوں کے لیے مراعات شامل۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کے لیے وزارت تجارت کی جانب سے منظور کی جانے والی ایس ایم ای پالیسی 2021 میں اعلان کر دیا گیا۔ ایس ایم ایز کی منڈیوں اور صارفین تک رسائی آسان بنانے کے لیے بھی ای کامرس، آن لائن بزنس اور مقامی اور بین الاقوامی نمائشوں میں شمولیت کی خصوصی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ حکومتی کانٹریکٹس اور پبلک پروکیورمنٹ میں ایس ایم ایز کی زیادہ سے زیادہ شمولیت کے لیے مخصوص کوٹا مختص کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر مخدوم خسرو بختیار نے کہا کہ ایس ایم ایز پالیسی کے تحت پیداواری کاروباروں کو ٹیکسوں میں 57 سے 83% تک خصوصی رعایت دی جائے گی تاکہ نہ صرف پیداواری لاگت کم ہو بلکہ شرح منافع بھی بڑھ سکے۔ ایس ایم ای کو 3 درجوں میں کیا ہے، لو رسک، میڈیم رسک اور ہائی رسک۔ 5% لارج سکیل میں آتا ہے اور باقی انٹرپرائزز کی شکل میں یہ سارے کا سارا سمال اور میڈیم ٹرم میں آتا ہے۔ ایگریکلچر سیکٹر سے باہر نکل کے 78% امپلائمنٹ ایس ایم ای سیکٹر کے ساتھ ہے۔ اب جس نے کاروبار شروع کرنا ہے، نیا لگانا ہے یا اپنا ایگزسٹنگ کاروبار کو ایکسپینڈ کرنا ہے، اس کو یہ این او سیز کے دفتروں کے چکروں سے آزادی مل گئی۔ ویمن انٹرپرائزز کے لیے 25% ٹیکس میں چھوٹ دے دی گئی ہے۔ تو یہ وہ اقدامات ہیں جو ہم نے اس پالیسی کے اندر کر دیے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے کہا کہ ہم ملکی معیشت میں بہت بڑی تبدیلی لائے ہیں۔ پاکستان کو بڑی سٹرونگ مینوفیکچرنگ بیس چاہیے، پاکستان کو بڑی سٹرونگ بڑی مضبوط جو ہے وہ انڈسٹریل بیس چاہیے، اور جب ہم اپنی، کیونکہ یہ ایک 22 کروڑ کا دنیا کا
5वां बड़ा मुल्क है, और अगर हम इसको एक मजबूत इंडस्ट्रियल बेस नहीं दे पाते तो इससे हम कभी भी अपने मुआशी जो मसाइल हैं उनसे बाहर नहीं निकल पाएंगे। SME पॉलिसी 2021 के तहत नई रेगुलेटरी इस्लाहात का निफाज किया जाएगा, जिसके तहत न सिर्फ पेचीदा और फसूदा निज़ाम से छुटकारा हासिल करके कारोबार में आसानियां पैदा की जाएंगी, बल्कि ये बेरोजगारी में कमी समेत कौम और मुल्क की माशी खुशहाली का ज़ामिन भी बनेगा। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और नाज़रीन, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि मुआशरे के कमज़ोर तबकों को गुर्बत से निकालने और उनके मसाइल के हल के लिए एहसास प्रोग्राम अहमियत का हामिल है। इन मनसूबों में शफाफियत फलाही रियासत के विजन की जानिब अहम कदम है। सदर ममलकत के इस्लामाबाद में एहसास वन विंडो मरकज़ के दौरे की तफसील जानते हैं मोहम्मद नवीद अजहर से। वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक एहसास प्रोग्राम के तहत कौमी सतह पर 12 जबकि मुंतखब अजला में 5 प्रोग्राम जारी हैं और हुकूमत की जानिब से रेडीबान और तहफ़्फ़ुज़ पायलट प्रोग्राम भी जारी हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने G7 इस्लामाबाद में एहसास वन विंडो मरकज का दौरा किया। सदर मुमलकत को वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ डॉक्टर सानिया नश्तर ने प्रोग्राम से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि एक जगह पर एहसास के तमाम फ़वाइद और खिदमात के साथ वन विंडो एहसास सेंटर मुस्तहकीन को सहूलत फराहम करता है, जिन्हें पहले अपने मसाइल के हल के लिए कई दफातर जाना पड़ता था। सदर मुमलकत ने एहसास कफालत, एहसास स्कॉलरशिप्स, एहसास बिलासूद कर्ज और एहसास तलीमी वज़ाइफ समेत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के हवाले से वन विंडो ऑपरेशन का मुआयना किया। उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्रामों से मुतल्लिक सवालात भी किए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी एहसास प्रोग्राम से मुस्तफीद होने वाले अफराद से भी मिले। ये तो 15-20 प्रोग्राम है, हर लेवल को टच करता है। स्कॉलरशिप, तालीम, बुनियादी तालीम, प्राइमरी एजुकेशन, स्टाइपेंड दिया जाता है लड़कियों के लिए ज़्यादा, ताकि वो तालीम के सिस्टम में रहें। 5वीं क्लास के बाद ड्रॉप आउट होता है तो एडिशनल बोनस स्टाइपेंड दिया जाता है कि लड़कियां ड्रॉप आउट ना हो। सदर मुमलकत ने कहा कि गरीब तबके को मुश्किलात से निकालने के लिए भी ये प्रोग्राम अहम किरदार अदा करेगा। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। जितने सियासतदान हैं उनसे भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो इस प्रोग्राम को समझें और गरीब लोगों को जिनके पास कुछ मसाइल हैं, इमरजेंसी की कैफियत है, तो उनकी उंगली पकड़कर ये फ़ायदे पहुँचाएँ। एहसास प्रोग्राम के तहत कोई भूखा न सोए और लंगर खानों के बाद अब कम आमदन वाले अफराद को एहसास राशन कार्ड दिए जा रहे हैं, जिससे उन्हें कम कीमत में अशियाए ज़रूरियात दस्तयाब होंगी। एहसास के तमाम प्रोग्रामों का मकसद मुआशरे के पिसे हुए और गरीब तरीन तबके की फलाह बहबूद और उन्हें तरक्की के धारे में शामिल करना है। मोहम्मद नवीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और हुकूमत की जानिब से कमज़ोर तबके को खाने पीने की अशिया पर बराह रास्त सब्सिडी फराहमी के लिए एहसास राशन प्रोग्राम के तहत रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। अब तक 96 लाख खानदान और 10,000 से ज़ायद किराना स्टोर इस प्रोग्राम में रजिस्टर हो चुके हैं। रिपोर्ट करेंगे राहील अंसार। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ख़ुसूसी हदायत पर शुरू किए गए एहसास राशन प्रोग्राम के तहत 50,000 से कम आमदन वाले गरीब और नादार अफराद हर माह आटा, दालें, घी और कुकिंग ऑयल की खरीदारी पर 1,000 रुपए का ख़ुसूसी डिस्काउंट हासिल करेंगे। इस वक्त एहसास राशन रियायत की रजिस्ट्रेशन का मरहला जो है वो जारी है। ये महंगाई के तनाजुर में वज़ीर-ए-आज़म की ख़ास हिदायत पर ये प्रोग्राम लाया जा रहा है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन था, हमने इसको बहुत जल्दी प्रोग्राम को अपने पाँव पे खड़ा किया है और उम्मीद है कि 1 जनवरी से इसकी ऑपरेशन शुरू हो जाएंगी। सब्सिडी की मद में 120 अरब हैं, जिसमें से 35% वफाकी हुकूमत देगी, 65% पार्टिसिपेटिंग प्रोविंसेस और वफाकी इकाइयाँ देंगी। इस हवाले से वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि एहसास राशन प्रोग्राम में रजिस्टर्ड होने वाले अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के जरिए 2 करोड़ खानदान बुनियादी अशिया ज़रूरिया पर 30% रियायत हासिल करेंगे। चौधरी फवाद हुसैन का कहना था कि मुस्तकबिल करीब में 7 लाख किराना स्टोर 120 अरब रुपए की सब्सिडी खानदानों को देने का जरिया बनेंगे। एहसास राशन प्रोग्राम में रजिस्टर होने के लिए जरूरतमंद अफराद अपने नाम से हासिल की गई मोबाइल सिम के जरिए अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8171 पर SMS करें, जबकि इस प्रोग्राम में शामिल होने के ख्वाहिशमंद किराना मर्चेंट्स वेबसाइट पर विजिट करें या करीबी नेशनल बैंक से राबिता करें। गरीब आवाम का ख्याल रखना हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। मौजूदा हुकूमत का टारगेटेड सब्सिडी देने का इकदाम यकीनी तौर पर गरीब आवाम के लिए किसी रिलीफ से कम नहीं। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की और कानून साजी और पार्लिमानी उमूर पर तबादला ख्याल किया। चीफ ऑर्गेनाइजर PTI सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी और सेनेटर अब्दुल कादिर भी मुलाकात में शरीक थे।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड अजफर अहसन ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म को सरमायाकारी बोर्ड में जारी इस्लाहात और तंजीम नौ पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि सरमायाकारी बोर्ड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तैनाती और इसे मज़ीद मुअस्सर बनाया जा रहा है। सरमायाकारी बोर्ड आइंदा साल बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी समिट और बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों के लिए भी एक इलहदा सरमायाकारी समिट मुनक़िद करने जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तैनाती के लिए तजावीज़ तलब करने के साथ साथ मज़कूरा इक़दामात की तकमील को मुअय्यना मुद्दत में यकीनी बनाने की हिदायत की। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने कहा है कि आइंदा 3 साल में अफ़गान तलबा को आला तालीम के लिए 4,500 वज़ाइफ दिए जाएंगे। इस्लामाबाद में अफगानिस्तान के आला तालीम के अबूरी वज़ीर अब्दुल बाकी हक़ानी की सरबराही में वफ़द से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि नर्सिंग के शोबे की तरक्की के लिए इब्तदाई तौर पर 100 वज़ाइफ से प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें बदतरीज इजाफा किया जाएगा। शफ़क़त महमूद ने कहा कि अफ़गान नौजवानों को हुनर की फराहमी आरास्ता करने के लिए न्यू टैक के जरिए ताउन फराहम किया जाएगा। अफगान अबूरी वज़ीर तालीम ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि तवील जंग से तबाहाल अफगानिस्तान की तामीर और तरक्की में हर कदम पर पाकिस्तान की मुआवनत की ज़रूरत है। और 19 दिसंबर को ओआईसी वज़ीर ख़ारजा काउंसिल इजलास की बात करें तो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की सदारत में इस्लामाबाद में इजलास हुआ, जिसमें 19 दिसंबर को ओआईसी वज़ीर ख़ारजा काउंसिल इजलास के इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है। सेक्रेटरी खारिजा की सरबराही में तश्कील दी गई इंतजामी कमेटी की जानिब से वज़ीर ख़ारिजा को मुफस्सिल ब्रीफिंग दी गई। इजलास को सिक्योरिटी समेत तमाम शोबों में इंतजामात के हवाले से ब्रीफ किया गया। 4 दहाइयों से ज़ायद खाना जंगी के शिकार अफगानिस्तान को इस वक्त दीगर मसाइल के साथ साथ खुराक की शदीद किल्लत का भी सामना है। 19 दिसंबर को इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के इजलास में इस अहम मसले पर गौर होगा। तफसील जानते हैं राना इफ्तिखार अहमद से। तवील खाना जंगी, मौसमियाती तब्दीलियों, खुश्क साली और अदम इस्तेहकाम की वजह से अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत को खुराक की कमी समेत बहुत से मसाइल का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की तकरीबन निस्फ आबादी को गुर्बत, कहत और ग़िज़ाई बहरान के साथ सर्द मौसम की शिद्दत का भी सामना है। इस वक्त अफगानिस्तान में 20 लाख बच्चों समेत 2 करोड़ से ज़ायद अफराद ग़िज़ा की कमी का शिकार हैं। अगर बर वक्त इक़दाम ना किए गए तो अफगानिस्तान में गुर्बत में खतरनाक हद तक इजाफा हो सकता है। 19 दिसंबर को इस्लामाबाद में इस्लामी ताउन तंजीम की वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के खुसूसी इजलास में अफगानिस्तान में खुराक की कमी के मसले से निपटने और मुस्तकबिल के हवाले से लाहे अमल पर बात होगी। इशू तो इस वक्त 4 करोड़ अफगान लोग हैं। पाकिस्तान अपनी पूरी कोशिश करेगा, लेकिन जब तक कि अमेरिका के अंदर ये रियलाइजेशन नहीं आती कि अगर वो इसी तरह उनके फंड्स को फ्रीज कर दिया और उनकी इकोनॉमी को स्क्वीज कर दिया और ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस उधर चला गया जिस तरफ ये जा रहा है, तो इसका नुकसान तो सबको होगा। तालिबान के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद अमेरिका और 20 साल तक अतिया देने वाले दूसरे मुल्कों ने अफगानिस्तान को फंड की फराहमी रोक दी है। ताहम पाकिस्तान इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर खुराक, अद्वियात और दीगर शोबों में ताउन फराहम कर रहा है। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप ने खबरदार किया है कि अगर आलमी बरादरी ने बर वक्त मदद ना की तो अफगानिस्तान में फाका कशी गुज़िश्ता 20 साल में मुल्क में होने वाली जंग से ज्यादा जानें ले सकती है। मौसम सरमा की शिद्दत बढ़ते ही खुराक की तरसील में रुकावटों जैसे मसाइल का भी सामना करना पड़ सकता है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में इटली के सफ़ीर ने कहा है कि अफगानिस्तान में इंसानी अलमियत से निपटने के लिए पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाली इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा काउंसिल का इजलास अहम है। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की रिपोर्टर नमरा सुहेल को खुसूसी इंटरव्यू में इटली के सफ़ीर ने कहा कि अफगान अमन के लिए मिलकर काविशें करना होंगी। Pakistan is a very important, a crucial interlocutor for dealing with the regional crisis.
And we respect and we have many expectations for the conference. And peace is made by men of goodwill. We have to work together to exchange opinion, to exchange experience, and to go to work all of us toward the same achievements and goals. और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि आलमी बरादरी की जानिब से इक्तसादी इमदाद की बंदिश और असासे मुंजमद किए जाने से अफगानिस्तान तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। बैंकिंग सिस्टम खत्म और अफगान करेंसी मुसलसल गिरावट का शिकार है। रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा, वर्ल्ड बैंक, IMF और मुखैर इदारों की जानिब से इंतबाह के बावजूद अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से निमटने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। ऐसे में खतरा है कि वर्ष 2022 तक मुल्क की 97% आबादी खते गुर्बत से नीचे चली जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान का नज़्म व नस्क चलाने, असातिज़ा, तिब्बी अमले और दूसरे सरकारी मुलाजिमीन को तनख्वाहें देने के लिए फंड्स नहीं हैं। अटलांटिक काउंसिल ने दुनिया भर में मौजूद अफगानियों पर भी जोर दिया है कि वो अपने हम वतनों को मुश्किल से निकालने के लिए ज़र मुबादला भेजें, जबकि बड़ी ताकतें रकूम अफगानिस्तान भिजवाने के लिए खुसूसी इमारात का ऐलान करें। अमरीकी थिंक टैंक ने मगरबी इत्तेहाद की जानिब से अफगानिस्तान में 20 साल तक की जाने वाली कोशिशों की नाकामी पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि अब ये अमरीका की जिम्मेदारी है कि वो अफगान अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए फराख दिलाना इक़दामात करे। साबिक अफगान सदर हामिद करज़ई भी अशरफ गनी के खिलाफ बोल पड़े। अमरीकी नशरियाती इदारे एसोसिएटेड प्रेस को इंटरव्यू देते हुए हामिद करज़ई ने अशरफ गनी के मुल्क से फरार पर तनकीद की है और कहा है कि गनी के इस इक़दाम से शराकत इक़्तिदार का मुआहदा तबाह हो गया। हामिद करज़ई ने कहा कि सक़ूत काबुल से एक रोज़ कबल डॉक्टर अब्दुल्ला और उन्होंने साबिक सदर अशरफ गनी से मुलाकात की थी, जिसमें दीगर 15 सियासतदानों के साथ दोहा जाकर तालिबान क़यादत से शराकत इक़्तिदार से मुताल्लिक़ बातचीत पर इत्तफ़ाक़ किया गया था। करज़ई ने कहा कि 15 अगस्त को शहर में यह अफवाह फैली कि तालिबान शहर में दाखिल हो रहे हैं। उन्होंने दोहा में तालिबान क़यादत से राबता किया और तालिबान रहनुमाओं ने यकीन दहानी कराई कि मुआहिदे से पहले उनकी फोर्स शहर में दाखिल नहीं होगी। तालिबान क़यादत ने कहा कि अफगान हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जिम्मेदारियां जारी रखें। हामिद करज़ई का कहना था कि मुझ समेत दीगर रहनुमाओं ने हुकाम से भी बात की और हमें यकीन दहानी कराई गई कि अमरीकी और हुकूमती अफवाज अपनी जगहों पर मजबूती से जमे रहेंगे और काबुल का सकूत नहीं होगा। करज़ई के मुताबिक दोपहर को जब गनी काबुल से रवाना हुए तो उसके बाद काबुल के पुलिस सरबराह समेत तमाम सिक्योरिटी अहलकार चले गए। दारुल हुकूमत में कोई अहलकार मौजूद नहीं था, कोई पुलिस चीफ नहीं था, कोई कोर कमांडर और यूनिट नहीं था। करज़ई के मुताबिक गनी के मुल्क से भागने के आखिरी लम्हात में शराकत इक़्तिदार के मुआहिदे को तबाह कर दिया। हम उम्मीद कर रहे थे कि अमन काउंसिल के चेयरमैन उस शाम या अगली सुबह दोहा जाएंगे और मुआहिदे को हतमी शक्ल देंगे। मुझे यकीन था कि तालिबान रहनुमा भी इसी मकसद के लिए दोहा में हमारा इंतजार कर रहे थे। और नाज़रीन, अब जिक्र करेंगे कोरोना और ओमिक्रॉन की सूरत हाल के हवाले से। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार किया है कि कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन दुनिया भर में इतनी तेज़ रफ्तारी से फैल रही है जिसकी मिसाल पहले नहीं मिलती। कोरोना की यह किस्म अब तक 77 ममालिक में पंजे गाड़ चुकी है। सेहत के इदारे WHO के सरबराह टेड्रोस एडनॉम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि ओमिक्रॉन से निमटने के लिए मौसर इक़दामात नहीं किए जा रहे। उनका कहना था कि इस वायरस के कम खतरनाक होने के बावजूद हस्पतालों पर शदीद दबाव पड़ सकता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन, जो कि इन दिनों आसियान ममालिक के दौरे पर थे, अपने वफ़द के एक रुकन में कोरोना वायरस की तशख़ीस के बाद दौरा ख़त्म करके वतन वापस रवाना हो गए हैं। ओमिक्रॉन का फैलाव रोकने के लिए बरतानवी पार्लियामेंट में वोटिंग के बाद खुसूसी बिल मंजूर कर लिया गया है। पार्लियामेंट में मास्क लाजमी पहनने के इक़दामात के हक़ में 441 जबकि मुखालिफत में सिर्फ 41 वोट पड़े। बिल के तहत सिनेमा, थिएटर्स और म्यूजियम में भी मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। बिल के मुताबिक नाइट क्लब्स और बाज़ दीगर मकामात पर दाखिले के लिए वैक्सीनेशन का सबूत या कोरोना का मनफी नतीजा दिखाना भी लाजमी होगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना वबा से मुतासरा 4 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि कोरोना के मजीद 370 नए केसेज सामने आ गए हैं। मुस्बत केसेज की शरह 0.82% रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता 24 घंटे में 44,609 टेस्ट किए गए, जबकि 706 अफराद की हालत तशवीशनाक है।
और नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रखते हुए आपको बताएंगे खलीज तावन काउंसिल का 42वां सरबराह इजलास रियाज में खत्म हो गया। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने इजलास की सदारत की। इजलास के बाद जारी होने वाले एलामिये में कहा गया है कि तंजीम के रुकन ममालिक इस्लाम की सरबुलंदी और अरब मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखेंगे। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और इक़्तिसादी तरक्की के लिए बाहमी ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। GCC के रहनुमाओं ने मुस्तक़बिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए ख़वातीन और नौजवानों के लिए कसीर मौक़े पैदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। इजलास से खिताब करते हुए सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि हम एक ताकतवर इक़्तिसादी ब्लॉक बनाने के ख्वाहिशमंद हैं, जिसके लिए मतनूज़ ज़राए आमदन और साजगार माहौल बुनियादी शराइत हैं। खलीज तावन काउंसिल सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान और मुत्तहिदा अरब अमारात पर मुश्तमिल तंजीम है, जिसका सरबराह इजलास हर साल मुनाक़िद होता है। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रखिएगा। फलाही रियासत की जानिब सफर का तारीखी संग मील 37 लाख घरानों के लिए 1400 अरब रुपए के कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम का मरहलावार आगाज। पहले मरहले में गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ पंजाब और सिंध के पसमानदा अजला से कर्जाजात के लिए दरखास्तों की वसूली का आगाज। मज़कूरा इलाकों के महदूद वसाइल वाले पाकिस्तानी अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर अभी 5771 पर SMS करें। एहसास प्रोग्राम और नादरा के डेटाबेस से अहलियत और शनाख्त की तस्दीक के बाद आपको कर्जाजात की फराहमी से मुतालिक जवाबी SMS के जरिए मुत्तला किया जाएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुल्क के कोने कोने में नए खेत, नए आंगन, नए रोजगार और नए कारोबार आबाद होंगे, क्योंकि हर पाकिस्तानी कामयाब तो पाकिस्तान कामयाब। रियासत मदीना की तर्ज पर फलाही निजाम, मुआशी तरक्की, खुशहाल अवाम। ब्रेक के बाद बात करेंगे मकबूजा वादी कश्मीर की, जहां भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। काबिज फोर्सेज ने ताज़ा कार्रवाई में जिला पुलवामा के इलाके राजपुर में एक और नौजवान को शहीद कर दिया, जिससे 3 रोज से मकबूजा वादी में जाली मुकाबलों में शहीद होने वाले नौजवानों की तादाद 4 हो गई है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौजियों ने इलाके में तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को सील कर दिया और इलाके में घर घर तलाशी ली। इलाके में मोबाइल इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई है, जबकि भारतीय फौजी सराय इब्लाग के नुमाइंदगान को इलाके में जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने सफाक भारतीय फौजियों के हाथों नौजवानों के दौरान हिरासत बेईमाना कत्ल की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत ने मुतनाज़ा इलाके में रियासती दहशतगर्दी की तमाम हदें पार कर ली हैं। तहरीक वहदत इस्लामी के चेयरमैन खादिम हुसैन ने कहा कि भारत ने बेगुनाह कश्मीरियों को रोजाना की बुनियाद पर जाली मुकाबलों में कत्ल करके नस्ल कुशी की अपनी मजमूम पॉलिसी मजीद तेज कर दी है। भारतीय पुलिस ने श्रीनगर में 2 कश्मीरी नौजवानों के कत्ल के खिलाफ एक एहतजाजी मुजाहरे के दौरान आज़ादी के हक में नारे बुलंद करने पर एक खातून और उसकी बेटी को गिरफ्तार कर लिया। नाज़रीन, मुल्क में जब भी दहशतगर्दी का जिक्र होता है तो सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर सानहा दिलों को गमज़दा कर देता है। 7 बरस गुजरने के बाद भी कौम आज तक इस गम की कैफियत से बाहर नहीं निकल सकी है। पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं साजिद अख्तर। सोलह दिसंबर 2014 वो होलनाक लम्हात अपने साथ लाया जब जुल्म और बर्बरियत की तारीख भी लर्ज उठी। मुल्क में दहशतगर्दी के मुतअद्दिद कार्रवाइयों के बाद क़यामत सुहरा उस दिन नजर आई जब पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में दहशतगर्दों ने कमसन बच्चों और ख़वातीन असातिज़ा को भी नहीं छोड़ा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले की इत्तला पर फौरी एक्शन लिया, लेकिन उस वक्त तक हमला आवरों ने कितनी ही माओ की गोदे उजाड़ी थी। हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन में कोई दहशतगर्द जिंदा ना बचा। ताहम ये भयानक सानहा 150 की लगभग कीमती जानें निकल गया, जिनमें अक्सरियत मासूम तलबा की थी। दहशतगर्दी की इस बहिमाना वारदात के बाद कौम यकजा हुई और पहली बार नेशनल एक्शन प्लान मुरतब किया गया। दहशतगर्दों का घेरा तंग करके सानहा पेशावर की मंसूबा साजों को भी इबरतनाक अंजाम तक पहुंचा दिया गया, मगर जिन माओ की गोदे उजड़ी
आज तक उनके आंसू रुकने में नहीं आ रहे हैं। कई नन्हे पूत 16 दिसंबर को हंसते खेलते घरों से निकले और मौत की वादी में गुम हो गए। जब भी दिसंबर आता है, दुनिया में अपनी खुशबू छोड़कर हमेशा के लिए बिछड़ जाने वालों के वालिदैन और बहन भाइयों के जख्म हरे हो जाते हैं। साजिद अख्तर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 7 साल बीत चुके हैं। 16 दिसंबर 2014 के वाक़े ने पूरी पाकिस्तानी कौम को यकजा कर दिया। अगरचे जख्म बहुत गहरे थे, लेकिन पाकिस्तानी कौम और इदारों का अज़्म इससे कहीं बुलंद था। इसी पर रिपोर्ट करेंगे राना शहजादुल इस्लाम। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के बाद पूरी कौम ने पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के साथ मिलकर एक ऐसे ऑपरेशन का आगाज किया जिसका हदफ एक ऐसा पाकिस्तान था जहां रियासत ही को ताकत के इस्तेमाल का हक हासिल हो। 86,000 से ज्यादा कुर्बानियों के नतीजे में आज हम वहां खड़े हैं जहां पाकिस्तान के इंच इंच पर रियासत की अमलदारी है। ये ज्यादा दूर की बात नहीं कि जब 2007 और 2008 में कबायली इलाकों में रियासत की अमलदारी नहीं थी, आज कबायली इलाके रियासत पाकिस्तान का हिस्सा हैं। दुश्मन ने सोचा कि इस दहशतगर्दी के जरिए मैं पाकिस्तानी कौम के इत्तेहाद को पारा पारा कर दूंगा, लेकिन वो इसमें बुरी तरह नाकाम रहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ पाकिस्तान की जंग नहीं है, ये आलमी जंग है और दुनिया को चाहिए कि पाकिस्तान का इस दहशतगर्दी को कुचलने के इरादों और अज़म को पूरा करने के लिए उसके साथ शाना बिशाना चले। जिंदा कौमें चैलेंजेस से सुरखरू होकर उभरती हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ इस कामयाब जंग में 46,000 मुरब्बा किलोमीटर का एरिया क्लियर किया गया, 18,000 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए, 250 टन से ज्यादा बारूद कब्जे में लिया गया, 75,000 से ज्यादा असला रिकवर किया गया जो कि लाखों जानों के नुकसान का बायस हो सकता था। 50 बड़े ऑपरेशन जबकि 2.5 लाख से ज्यादा IBOs किए गए। कुर्बानियों का सिला आज ये है कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है और दहशतगर्दों के जो ग्रुप थे अब उनका मुनज़्ज़म ग्रुप जो है उनका खात्मा हो चुका है। पाकिस्तान की कौम ने वो कर दिखाया जो पूरी दुनिया में नहीं किया गया। पाकिस्तान अमन का गहवारा बना, पूरे पाकिस्तान में रियासत की अमलदारी कायम हुई। जो दुश्मन के अज़ाइम हैं उनको नाकाम बनाने के लिए पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ जो है वो सीसा फैलाई हुई दीवार बन के खड़ी है। बलूचिस्तान में भारत के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया गया और कराची जो कि कभी क्राइम के हवाले से दुनिया का छठा शहर था, वो अब 106 नंबर पर चला गया है। पंजाब से छोटू गैंग समेत दीगर दहशतगर्द ग्रुपों का खात्मा किया गया। नेशनल एक्शन प्लान के तहत 60 से ज्यादा तंजीमों को कलदम करार दिया गया। तारीख जब भी लिखी जाएगी तो यकीनन मुअर्रख लिखेगा कि पाकिस्तानी कौम और अफवाज पाकिस्तान ने तमाम तर चैलेंजेस का जिस बहादुरी से मुकाबला किया वो अपनी मिसाल आप थी। राना शहजादुल इस्लाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सानह मशरक़ी पाकिस्तान के 50 साल मुकम्मल हो चुके। इस वाक़े ने रोज़े अव्वल से पाकिस्तान के वजूद के इनकारी हिंदुस्तान के मज़मूम अज़ाइम को बेनकाब कर दिया। अगरचे मुल्क दो लख्त हुआ, लेकिन बेशुमार ऐसे लोग भी थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपना घर बार लुटा दिए। उन्हीं में से एक बिहारी कम्युनिटी के हवाले से आसिम रिजवान की ये रिपोर्ट देखिए। मशरकी पाकिस्तान में भारत की दखल अंदाजी और जारहियत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी थी। हकीकत तो यह है कि खित्ते में आज तक सुलगती आग भारत की ही दहकाई हुई है। 1971 में अगरचे मशरकी पाकिस्तान अलहदा हुआ, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ ऐसे बेशुमार लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। इन्हीं में से एक बिहारी कम्युनिटी भी थी। बिहारी कम्युनिटी आज भी पाकिस्तान और बांग्लादेश में आबाद है और अपने बुनियादी हक, अपनी शनाख्त की मुतलाशी है। 71 की जंग में जो वहाँ मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी थे उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। इनमें बिहारी मुसलमान ज्यादा तादाद में थे और इतनी ही तादाद में बंगाली मुसलमान भी थे। 1971 की वार ये जंग नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, एक आलमी साजिश थी। पाकिस्तान के क़याम के साथ ही 1947 के साथ ही पाकिस्तान की तखरीब की बुनियाद भी रखती गई थी। वहाँ पर नॉन बंगालीज थे और जो बिहारी बिरादरी थे ये पाकिस्तान के लिए खड़े हुए। मुक्ति बाहिनी ने बिहारियों को पकड़ने के बाद उनको कहा कि जय बांग्ला बोलो
اور جب انہوں نے جے بنگلہ نہیں بولا تو ان کے منہ میں جلتے ہوئے انگارے ڈالے ہیں۔ سانحہ 71 کے 50ویں سال بہاری کمیونٹی کی داد رسی اور پذیرائی کے لیے چند اہم اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ پہلی مرتبہ 6 ستمبر کے موقع پر جنرل ہیڈ کوارٹرز میں بہاریوں کو نہ صرف مدعو کیا گیا بلکہ شام کے ڈھلتے گہرے سائے میں یادگار شہداء پر موجود ہر شخص ان کو خراج عقیدت پیش کر رہا تھا۔ یہی نہیں بلکہ پاکستان کے کونے کونے میں ہر شخص نے ان کی قربانیوں کو اعتراف کیا۔ رواں سال بہاریوں کے اعزاز میں پشاور، کراچی، ملیر، حیدرآباد، لاہور اور راولپنڈی میں خصوصی تقریبات کا انعقاد بھی کیا گیا۔ پشاور میں ہونے والی تقریب بہاری کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے 46 افراد کے اعزاز میں منعقد کی گئی۔ ان میں سے 10 ریٹائرڈ آرمی افسران ایسے بھی تھے جنہوں نے 1971 کی جنگ میں شرکت کی۔ لاہور میں ہونے والی تقریب میں بہاری کمیونٹی کے 250 عظیم لوگوں اور جانثاروں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ ملیر، کراچی اور حیدرآباد میں 3 مختلف تقریبات میں 660 بہاری افراد اور جنگی ہیروز کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ 16 دسمبر کو اسی سلسلے کی اعزازی تقریب راولپنڈی میں بھی منعقد کی جا رہی ہے۔ اس تقریب میں 63 بہاریوں اور جنگی ہیروز کو مدعو کیا گیا ہے۔ بہاری کمیونٹی جو تھی، جو ہمارے ینگ لوگ جو تھے، نوجوان جو تھے، پاکستانی فوج کے ساتھ جو ہے شانہ بشانہ، بلکہ یہاں تک کہ فوج کے بہت ہی شانہ بشانہ جو ہے آگے کی طرف موو کر کے وہ ہندوستان سے لڑے۔ حال ہی میں ریلیز ہونے والی فلم کھیل کھیل میں بہاریوں کے مصائب، حالات اور قربانیوں کی زبردست عکاسی کی گئی ہے اور متحدہ پاکستان کے لیے ان کی خدمات کو بھی اجاگر کیا گیا ہے۔ عاصم رضوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ M3 اور M5 موٹر وے پر موبائل براڈ بینڈ کوریج فراہمی کے لیے اسلام آباد میں معاہدے پر دستخط ہوئے۔ یونیورسل سروس فنڈ، وزارت مواصلات اور نجی کمپنی کے درمیان طے پانے والے اس منصوبے پر 30 کروڑ روپے لاگت آئے گی اور کوریج سے محروم رہنے والے علاقوں کو رابطے کی سہولت دستیاب ہوگی۔ وفاقی وزراء مراد سعید اور امین الحق کا کہنا ہے کہ دیہات اور چھوٹے شہروں کو ڈیجیٹل دنیا سے منسلک کیا جا رہا ہے۔ IT کے فروغ سے ریونیو میں بھی اضافہ ہوگا۔ تفصیل بتا رہے ہیں رانا افتخار احمد۔ وزیر مواصلات مراد سعید نے کہا کہ IT کا شعبہ ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ہمارے نوجوان سٹارٹ اپس کے میدان میں بھی بہترین کارکردگی دکھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کے ویژن کے تحت پاکستان کو آگے لے کر جا رہے ہیں۔ سابقہ فاٹا تقریباً 900 کلومیٹر سے زائد یہ اس وقت کام کر رہے ہیں کہ فائبر آپٹکس کے اوپر سوات ہے، تر لوئر، تر اپر، چترال، تو یہاں پہ بھی انہوں نے ترجیح دی اور ایک منصوبہ شروع کر دیا جو کہ انشاءاللہ اگلے 6-7 مہینے میں مکمل ہو جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ ہمارا بلوچستان اور بلوچستان میں خاص کر ساؤتھ بلوچستان کا جو ہمارا علاقہ ہے وہاں پہ بھی لوگوں کو کنیکٹیوٹی دینے کی ایک کوشش کی اور اس منصوبے کا آغاز ہو گیا۔ IT سیکٹر بنے گا جو ملک کی برآمدات میں اضافہ کرے گا اور پاکستان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرے گا۔ وزیر IT سید امین الحق نے کہا کہ حکومت تمام علاقوں میں براڈ بینڈ سروس کی فراہمی کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ اب ہمارا ہدف 5G کو لانچ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت عوام کو سہولتوں کی فراہمی پر توجہ دے۔ وفاقی حکومت کی طرف سے ہر سال تقریباً 8 سے لے کر 850 ارب روپے NFC کے ایوارڈ میں سندھ حکومت کو دیا جاتا۔ اگر آپ سندھ کو جا کے دیکھیں تو کوئی ایک ایسا UC نظر نہیں آتا جس کو ہم ماڈل UC کے طور پہ پیش کر سکتے، کوئی ایک ایسا اسکول، کوئی ایک ایسا ہاسپٹل نظر نہیں آتا ہے۔ تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے سندھ حکومت کی کارکردگی کا۔ اس موقع پر M3 اور M5 موٹر وے پر براڈ بینڈ سروس کی فراہمی کے معاہدے پر دستخط بھی کیے گئے، جس سے پنجاب اور سندھ کے 19 اضلاع تیز ترین موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس سے مستفید ہوں گے۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا ہے کہ تبدیلی اور نئے پاکستان کی شمع لے کر عمران خان نے 22 سال جدوجہد کی۔ موجودہ حکومت ملک کی ترقی اور کمزور طبقوں کی خوشحالی کے لیے پرعزم ہے۔ اسلام آباد میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تمام علاقوں کی یکساں ترقی کی پالیسی کے تحت اقدامات جاری ہیں۔ شاہراہوں کی تعمیر اور اپ گریڈیشن کے اربوں روپے کے منصوبوں پر کام جاری ہے۔ خیبر پختونخوا کی طرز پر پنجاب میں ہر شہری کو صحت کارڈ کی سہولت میسر ہوگی۔ پورے پاکستان کے اندر وفاق کی اگر کوئی ایک جماعت ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ وفاق کا اگر کوئی ایک لیڈر ہے تو وہ وزیر اعظم عمران خان ہے۔ خیبر پختونخوا کی ساری آبادی کو صحت کارڈ مل چکا ہے کہ سب کا علاج 10 لاکھ روپے تک جو ہے وہ فری ہو رہا ہے۔ پنجاب میں بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے صحت کارڈ کا آغاز شروع کر دیا ہے۔ ہمارا جو احساس پروگرام ہے اس پروگرام کے تحت وہ لوگ جو گریجویشن کرنا چاہتے ہیں، جو آگے اپنیاں مزید پڑھنا چاہتے ہیں،
2 लाख स्कॉलरशिप्स जो है वो अभी तक हम उनको फराहम कर चुके हैं। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की पूरी आबादी को सेहत इंसाफ कार्ड फराहम किया जा चुका है। मुआवने खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत की ठोस इक़दाम से मुल्की मईशत दुरुस्त समत पर गामसन हो चुकी। गैर मुल्की कंपनीज पाकिस्तान में सरमायाकारी को तरजीह दे रही हैं। लाहौर में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि साबिक हुक्मरानों ने अवाम के अरबों रुपए अपने कैंप ऑफिस में झोंक दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोई कैंप ऑफिस नहीं और वो यूटिलिटी बिल्स भी खुद अदा करते हैं। तफसील ताहिर जाफरी से जानते हैं। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर लाहौर रावी किनारे नया शहर कायम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 5000 एकड़ पर मुहित रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबे में सऊदी कंपनी $600 मिलियन की सरमायाकारी करेगी। उन्होंने कहा कि सऊदी तामीराती कंपनी 900 अपार्टमेंट्स, आलमी मेयार के 6 स्कूल और अस्पताल बनाएगी। मंसूबे में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। ये पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, ये पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रीज की साइंटिफिक बुनियादों पर आगे लेके जाने के लिए पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के कोलैबोरेशन में ये जो मंसूबा है, ये जो $600 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है। डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपने दौर में 48 और नवाज शरीफ ने 92 गैर मुल्की दौरे किए, जिन पर अरबों रुपए खर्च किए गए। इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनकर PM हाउस के खर्चात में खातिर खा कमी की। ये लोग कभी जाली ऑडियो छोड़ देते हैं, कुछ हमारे दोस्त चैनल उसको चला भी देते हैं बगैर किसी तहकीक किए हुए। कभी ये जाली और काम करते हैं, कभी फिर जजेस से बयान दिलवा देते हैं। ये तो मीडिया और अवाम ने फैसला करना है कि वजीउद्दीन साहब जैसे लोग इस तरह के झूठ क्यों बोलते हैं। पार्टी इसको देखेगी कि हमने इसको लीगल नोटिस देना है कि नहीं, लेकिन जिनका नाम लेके उन्होंने इल्जाम लगाया तो उन्होंने भी रिफ्यूट और इसे झूठा करार दे दिया। डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि तालीम के फरोग के बगैर हकीकी तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। इससे कबल लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए मुआविन खुसूसी ने कहा कि हमें दुनिया का मुकाबला करने के लिए टेक्नोलॉजी पर दस्तरस हासिल करना होगी। उन्होंने कहा कि 3 साल के दौरान सिर्फ अपने इलाके में 46 स्कूलों को अपग्रेड करवाया और 2 नए कॉलेजेस तामीर करवाए, जहाँ तालिबात ग्रेजुएशन तक तालीम हासिल कर रही हैं। इस मौके पर डॉक्टर शहबाज गिल ने तालिबात में डिग्रियाँ भी तकसीम की। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। बैरिस्टर सरदार एजाज इसहाक खान, अरबाब मोहम्मद ताहिर और समन रिफात इम्तियाज को एडिशनल जज तैनात किया गया है। जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी ने इन तैनातियों की सिफारिश की थी। और सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में निजी जामियात के गैर कानूनी कैंपस बंद करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कहा कि हायर एजुकेशन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया है कि निजी जामियात को अपनी हुदूद से बाहर कैंपस कायम करने की इजाज़त नहीं। अदालत ने हिदायत की कि कैंपस से पास आउट होने वाले तलबा को मखसूस तरीके से डिग्रीज फराहम की जाएँ। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में अटॉर्नी जनरल ने वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद बरतरफ मुलाजमीन के मामले के हल के लिए तजावीज़ अदालत में पेश कर दी। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच को अटॉर्नी जनरल ने तजवीज़ दी कि अदालत को 17 अगस्त का फैसला वापस लेते हुए तमाम मुलाजमीन को बहाल करे, ताहम अगर मुलाजमीन की नज़रसानी दरख्वास्तें खारिज की जाती हैं तो उस सूरत में ग्रेड 1 से 7 के मुलाजमीन को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कबल के ओहदों पर बहाल किया जाए। अटॉर्नी जनरल की तजावीज़ के मुताबिक ग्रेड 8 और इससे ऊपर के मुलाजमीन का फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन टेस्ट ले। टेस्ट और वज़ा किए गए मयार पर पूरा उतरने वाले मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया जाए, ताहम उनकी गुज़िश्ता सर्विस आर्जी होने की बिना पर मुद्दत मुलाजमत में तसव्वुर न की जाए। FPSC टेस्ट का अमल 3 माह में मुकम्मल करेगी। जो मुलाजमीन रिटायर्ड या वफात पा चुके हैं उनके मामलात को माजी का हिस्सा तसव्वुर किया जाए, ताहम वो या वफात पाने वाले मुलाजमीन के वरसा मजीद पेंशन के हकदार नहीं हो सकते। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अटॉर्नी जनरल पर वाज़ेह किया कि उनकी तजावीज़ के जायजे के बाद अदालत अपना रद्द अमल देगी और मुकदमे का फैसला सुनाया जाएगा। नाज़रीन, खुसूसी बच्चों की हौसला अफजाई के लिए ऐवान सदर इस्लामाबाद में तकरीब का एहतमाम किया गया। सदर मुमलकत के अहलिया बेगम समीना अलवी ने कहा कि बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। हुकूमत खुसूसी बच्चों की फलाह के लिए अहम इक़दाम कर रही है। इसी पर रिपोर्ट करेंगी सदफ अफसर। कौमी एयरलाइन PIA और सिविल एविएशन अथॉरिटी के इश्तराक से फंड रेजिंग की तकरीब में खुसूसी बच्चों की तंजीम अल शिफा ट्रस्ट की सरगर्मियों को उजागर किया गया। तकरीब से खिताब में बेगम समीना अलवी ने कहा कि खुसूसी बच्चे हमारी तवज्जो के मुस्तहिक हैं और उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है।
People with disability should be given enough opportunity to play their vital role in the society in all walks of life. The government has made it a mission and it is incumbent upon it to serve the nation and the suffering humanity. PIA کے CEO اور الشفا ٹرسٹ کے چیئرمین ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں، انہیں معاشرے کا کارآمد شہری بنانے کے لیے ہم سب کو کوششیں کرنا ہوں گی۔ These are angels, these are butterflies, and these angels and butterfly once walk together, I can assure you ladies and gentlemen that a small penny will contribute a lot towards this noble cause. تقریب میں خصوصی بچوں نے مختلف ٹیبلوز بھی پیش کیے۔ اس موقع پر صدر ڈاکٹر عارف علوی نے بھی بچوں سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ کچھ وقت گزارا۔ بیٹ بال کھیلتے ہیں اور پڑھائی کرتے ہیں اور کرکٹ کھیلتے ہیں۔ جو بچہ جس چیز میں کم پرفارم کر رہا ہو تو اس کو ہم اس کو انکریز کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے معاشرے میں ایک مقام حاصل کر سکے۔ تقریب میں MD بیت المال، مختلف ملکوں کے سفراء اور ان کے اہل خانہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ان خصوصی بچوں کو معاشرے میں باوقار مقام دلانے کے لیے ہر طبقے کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور ناظرین، نوجوانوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے کامیاب پاکستان پروگرام کے تحت مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اس پروگرام کے تحت اخوت فاؤنڈیشن نے بھی خیبر پختونخوا میں کامیاب کاروبار، کامیاب کسان اور کم لاگت گھروں کی تعمیر کے لیے قرض دینے کا آغاز کیا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں ساجد اختر۔ کامیاب پاکستان پروگرام کے تحت خیبر پختونخوا میں نوجوانوں کو کاروبار اور کسانوں کو کامیاب کسان پروگرام کے تحت قرضے دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اخوت فاؤنڈیشن کے اشتراک سے حکومت پاکستان نے کامیاب پاکستان پروگرام کے تحت 2160 افراد کو قرضے فراہم کیے۔ پروگرام کے مطابق کامیاب کاروبار اسکیم کے تحت 50,000 سے 5 لاکھ روپے تک بلا سود قرضہ فراہم کیا گیا۔ کامیاب کسان پروگرام کے تحت 20,000 روپے سے 2 لاکھ تک بلا سود قرضہ جات اسکیم کا حصہ ہیں۔ میرے گھر کا حالات کافی خراب تھا، میں اخوت ادارے کا شکریہ اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ مجھ کو بلا سود چھوٹا قرضہ دیتا ہے۔ ہمیں جو قرضہ ملا ہوا ہے اس سے ہمیں کافی فائدہ ہوا ہے۔ پہلے جو قرضے لوگ لے چکے ہیں وہ ٹائم پر اس کو ادا بھی کر سکتے، ان کے آمدن میں کافی حد تک اضافہ ہوا ہے۔ ہمیں قرضہ دیا ہے اور ہم نے الحمدللہ اپنا کاروبار شروع کیا ہے۔ یہ ایک بہت اچھا پروگرام ہے، ادھر ہمارے بہت دوست ہیں اس نے بھی یہ قرضے لیے ہیں۔ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ انہوں نے ہمارے پسماندہ تحصیل میں اس پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ کامیاب پاکستان پروگرام میں شامل ضلع ثوابی میں اب تک 47 کروڑ روپے کی لاگت سے 15,603 افراد کی مالی معاونت کی گئی۔ ہزارہ ڈویژن میں 7 کروڑ 48 لاکھ روپے کی خطیر رقم سے 1,866 افراد مستفید ہوئے، جبکہ لوور دل میں فی کس 50,000 قرضے کی مدد سے 49 افراد کو مجموعی طور پر 21,80,000 روپے کا فنڈ جاری کیا گیا۔ اسی طرح نوشہرہ میں 213 افراد میں 85 لاکھ روپے مالیت کے بلا سود قرضے تقسیم کیے گئے۔ یہاں سے 15,603 بندے مستفیض ہو چکے ہیں۔ چھوٹے موٹے قرض حسنہ کی صورت میں جو چھوٹے موٹے کام کاروبار کے لیے قرض حسنہ لیتے ہیں۔ کامیاب پاکستان پروگرام کا مقصد عوام کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے معاشی مدد دینا ہے۔ کاروبار کی ترقی اور کسان کی خوشحالی کے لیے پہلی بار حکومت نے توجہ دی ہے۔ ساجد اختر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور۔ السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں کہ لاہور اور اس کے گرد و نواح میں دھند کا سلسلہ جاری ہے۔ شدید دھند کی وجہ سے کاروباری زندگی مفلوج ہے۔ آمد و رفت معمول کے مطابق مگر انتہائی سست روی کا شکار ہے۔ شدید دھند کی وجہ سے موٹر وے M2 لاہور سے ہرن مینار، موٹر وے M3 لاہور سے سمندری تک، موٹر وے M2 لاہور سے الکوٹ ہر طرح کی ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ ترجمان موٹر وے کے مطابق کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے موٹر وے پولیس ہیلپ لائن 130 پر رابطے کے ساتھ فوگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو آگاہ کریں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد، جبکہ بالائی علاقوں میں ابر آلود رہے گا۔
بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں ہلکی برفباری کا امکان، جبکہ پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔